Hello everyone. Myself Dr. Vinita Rathod, Associate Professor of Zoology at SMB Government PG College, Nathudwara. In this video, we will study about biogeochemical cycles in the ecosystem. I have divided this chapter into three parts. In this part 1, we will discuss about hydrological cycle. As we all know, organisms are built up on chemical substances. Approximately 30 to 40 elements are required for proper growth and development of living organisms. The most important of these are carbon, hydrogen, oxygen, phosphorus, potassium, nitrogen, sulfur, calcium, iron, magnesium, boron, zinc, chlorine, molybdenum, cobalt, iodine, and fluorine. These elements flow from environment to the organism and back to the environment with or without changes. These chemicals enter the organism from the environment and come out after undergoing changes, or some goes out without any change. Thus, these elements tend to circulate in a characteristic path from the environment to the organism and back to the environment. This cyclic path of the elements from the abiotic system to the biotic system and back is called biogeochemical cycles. As these chemicals form the components of the food, these cycles can also be termed as nutrient cycles. जीवों को अपनी जैविक क्रियाओं को चलाने तथा जीव द्रव्य का निर्माण करने हेतु अनेक पदार्थों की आवश्यकता होती है। इनमें से जो मुख्य रूप से आवश्यक पदार्थ हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है और अन्य पदार्थ जैसे कि फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, आयरन या लोहा, मैंगनीज, कोबाल्ट, कॉपर या तांबा, जिंक, जस्ता, बोरोन, एल्यूमिनियम और मॉलिब्डेनम आदि हैं। इनमें से कोबाल्ट, तांबा, जस्ता, बोरोन, मॉलिब्डेनम, मैंगनीज और एल्यूमिनियम जो तत्व हैं, इनकी आवश्यकता अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में होती है। इन तत्वों के अतिरिक्त अनेक आधुनिक अनुसंधानों से ये पता चलता है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्रोमियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, निकल, सिलिकॉन आदि तत्वों की भी आवश्यकता जीवों को होती है और इस आधार पर इन्हें पोषक द्रव्य कहा जाता है। जितनी मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है उसके अनुसार इनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। जिनकी आवश्यकता ज्यादा है उन्हें हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं और जिनकी आवश्यकता कम होती है उन्हें हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जीव द्रव्य के मूलभूत तत्वों सहित सभी रासायनिक तत्व कुछ विशिष्ट चक्रों द्वारा वायुमंडल में, प्राणियों में तथा पुनः वातावरण में मुक्त होकर जीव मंडल में प्रवाहित होते रहते हैं। इन्हीं चक्रों को जैव भू रासायनिक चक्र या बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कहा जाता है। क्योंकि ये जो हमने अभी एलिमेंट्स पढ़े, ये सब केमिकल कंपाउंड्स मुख्य रूप से जीवों का भोजन बनाते हैं और इनका भी चक्रीकरण होता है। इसी कारण से इन्हीं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को हम न्यूट्रिएंट साइकिल भी कहते हैं या पोषक चक्र भी इनको कहा जाता है। This picture shows nutrient cycle, that how the nutrients are moving from the environment to the organism and from the organism to the environment. Here we can see that sunlight is coming on the plant and these plants are synthesizing food for them by the process of photosynthesis. The leaves of plants are coming down on the earth and these leaves are eaten up by a herbivore animal. These are the dead leaves and these animals are eating those dead leaves. Some of the dead leaves are eaten up by the organism and some remain on the earth.
When these leaves are eaten up by the organism, they are converted into the food of the organisms, and they digest them and use them for their growth and development, and rest undigested material is removed from them in the form of fecal matter. The dead leaves which are lying on the surface of the earth and the waste product which is produced by the herbivores are then returned to the soil. These are decomposed with the help of microorganisms, and the decomposition of these organic matter enriches the nutrition in the soil, and they are converted into minerals and other nutrients. These minerals and other nutrients are then again absorbed by the plants for their development and the growth. So in this way we can see that the food is circulating in a cyclic way from the environment to the autotrophs, then to the herbivores, and then to the carnivores, then to the decomposers, and again it comes into the environment either in the form of minerals or in the form of gases, and these nutrients then goes round the environment and the organism. इस चित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं कि पोषक तत्वों का चक्रीकरण किस तरह से होता है। यहाँ पे हमें एक बड़ा सा वृक्ष दिखाई दे रहा है जो सूर्य के प्रकाश से और वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके वो अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करता है। जब पादप अपना भोजन कर लेते हैं तो उसके बाद उनकी कुछ डेड लीव्स या मृत पत्तियां नीचे झड़ जाती हैं। इन पत्तों को हर्बीवोर्स या शाकाहारी जीवों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और कुछ पत्तियां जमीन पर ऐसे ही सूख जाती हैं। जो शाकाहारी जीव ग्रहण करते हैं उन्हें अपने पोषक तत्वों का जो उनको उपयोग करना है पाचन के द्वारा उपयोगी पोषक तत्व काम में ले लेते हैं, और जो अनुपयोगी या जो अपचित भोजन होता है उसे वो मल के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर देते हैं, जो कि पृथ्वी पर आ जाता है। फिर इन हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स या मांसाहारी जीव खा लेते हैं और फूड चेन में होता हुआ अल्टीमेटली ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के रूप में या ये अपचित भोजन के रूप में मृदा में मिल जाता है। मृदा में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिकम्पोजर्स कहलाते हैं और इन तत्वों का डिकम्पोजिशन करके उन्हें फिर से मिनरल्स और अदर न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि मृदा में अच्छी तरह से मिल जाते हैं। फिर मृदा से जल में घुल करके ये पुनः पादपों में चक्रिक रूप से प्रविष्ट हो जाते हैं और फिर वापस पादप अपनी ग्रोथ करता है, भोजन बनाता है और ये पोषक तत्वों का चक्रीकरण निरंतर सतत रूप से जारी रहता है। Phases of biogeochemical cycles. Each biogeochemical cycle has two phases. One is the biotic phase and second is the abiotic phase. The biotic phase is the phase which refers to the flow of chemicals in the living organism through food chain. The abiotic phase refers to the distribution of flow of chemicals in the non-living environment. प्रत्येक बायोजियोकेमिकल साइकिल दो फेजेस में पूरा किया जाता है। पहला जैविक फेज और दूसरा अजैविक फेज। जब हम जैविक फेज की बात करते हैं तो इस फेज के दौरान जो पोषक तत्व या केमिकल्स हैं उनका फ्लो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है थ्रू द फूड चेन, अर्थात पादपों को हर्बीवोर्स के द्वारा खाया जाता है, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स के द्वारा खाया जाता है। हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स के डेथ के बाद इनका डिकम्पोजिशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डिकम्पोजर्स के द्वारा किया जाता है। तो ये जो चक्रीकरण हो रहा है जो कि फूड चेन में हो रहा है, इस फेज को हम बायोटिक फेज या जैविक फेज कहते हैं। दूसरा हमने कहा
एबायोटिक फेज। एबायोटिक फेज का अर्थ है कि जो पोषक तत्व या केमिकल्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के अंदर हो रहा है। अर्थात हो सकता है कि मृदा से जल में, जल से वायुमंडल में और फिर वापस से वायुमंडल से जल में और मृदा में हो। तो इस तरह से 2 चक्रों में जाकर के बायोजियोकेमिकल साइकिल पूरा होता है। Types of biogeochemical cycles. The biogeochemical cycles are classified into 3 types. First, hydrological cycle, which is also called as water cycle. Second, gaseous cycle. And third, sedimentary cycle. The hydrological cycle or the water cycle, strictly speaking, is not an elemental cycle because it follows the course of water. So, many of the ecologists don't consider hydrological cycle as biogeochemical cycle. They consider only 2 cycles, gaseous cycles and sedimentary cycles. In water cycle, the interchange of water between air, land and sea and between living organisms and their environment is accomplished through water cycle. It involves evaporation, transpiration, cloud formation, precipitation, etc. The second is gaseous cycle. In gaseous cycle, the atmosphere constitutes the major reservoir of elements that exist in the gaseous phase. Such cycles show little or no permanent change in the distribution and abundance of the element. The examples of gaseous cycle are carbon cycle, nitrogen cycle, and oxygen cycle. Sedimentary cycle. In sedimentary cycle, the major reservoir is the lithosphere from which the elements are released by weathering. In these cycles, a little portion of the supply may get lost as in deep ocean sediments and thereby becomes inaccessible to organisms and to continual cycling. The examples of sedimentary cycle are phosphorus cycle and sulfur cycle. जैव भू रासायनिक चक्रों के प्रकार। जैव भू रासायनिक चक्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला जल चक्र, दूसरा गैसीय चक्र और तीसरा अवसादी चक्र। जल चक्र को कई लोग अलग से नहीं मानते हैं और इसे भी गैसियस या गैसीय चक्र के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है, क्योंकि जल चक्र में किसी एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, यहाँ केवल जल का फ्लो ही देखा जाता है। जल चक्र में जो जल है वो वायु, पृथ्वी, समुद्र और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मध्य में घूमता रहता है। इस अभिक्रिया के दौरान इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, बादलों का निर्माण और वर्षा इत्यादि आते हैं। दूसरा चक्र जिसे हम गैसीय चक्र कहते हैं, इसमें मुख्य निचय कुंड या रिजर्वॉयर पूल वायुमंडल या गैसेस के द्वारा निर्मित होता है और इसमें मुख्य रूप से जो एलिमेंट्स जिसका हम पढ़ना चाह रहे हैं या जिसकी हम चक्रीकरण की बात कर रहे हैं वो गैसीय अवस्था में उपस्थित होता है। इसके उदाहरण हैं कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र और ऑक्सीजन चक्र। तीसरा जो चक्र है उन्हें हम अवसादी चक्र कहते हैं। इसमें निचय कुंड अश्ममंडल या लिथोस्फीयर होता है। इस समूह के अंतर्गत उन समस्त पोषक द्रव्यों का चक्रीय भ्रमण हो जाता है जिनका विशाल कुंड एवं लघु द्रव्य कुंड भूमि अर्थात मृदा अथवा सागर की तलहटी अथवा अन्य जलाशयों की तलहटी में पाया जाता है। समस्त खनिज पोषक द्रव्य इसी समूह में आते हैं क्योंकि सेडिमेंटेशन के द्वारा उनके पिंड कुंड का
निर्माण होता है। अवसादी जीव भूरासायनिक चक्रों का भ्रमण पथ अधिक अपूर्ण होता है क्योंकि ये मुख्य रूप से भूमि से संबंधित रहते हैं और ये बड़े जल्दी अनायास ही मनुष्य की अविचारपूर्ण क्रियाओं से अव्यवस्थित हो सकते हैं। सेडिमेंट्री साइकिल या अवसादी चक्रों का उदाहरण है फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। In hydrological cycle, there occurs an interchange of compounds between the Earth's surface and the atmosphere via precipitation and evaporation. The major reservoir of the hydrological cycle is in the oceans, and the major flows are evaporation from them and precipitation upon them. There is a net flow of water vapor driven by winds from the oceans to the land where it falls as rain, hail, or snow. The balance of water cycle is maintained by water flowing from the land as surface runoff or movement of groundwater into rivers and back to the oceans. जल चक्र। जल ही जीवन है और जीवों के जीवन हेतु जल उनकी विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु अति महत्वपूर्ण द्रव्य के रूप में कार्य करता है। जल चक्र का बहुत बड़ा भाग भूतल एवं वायुमंडल के वर्षा एवं वाष्पन के माध्यम से संपन्न होने वाले विनिमय पर आधारित होता है। जल का वायु, थल और समुद्र, मध्य तथा जैविक जीव एवं उनके वातावरण के जीव का रूपांतरण एक चक्रीय ढंग से होता है और यह जल चक्र के द्वारा ही पूर्ण किया जाता है। जल चक्र वाष्पन यानी कि इवेपोरेशन, वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन और बादल बनना तथा अवक्षेपण या वर्षा आदि क्रियाओं को प्रभावित करता है। इन सब में से प्रमुख प्रक्रिया वाष्पन की है क्योंकि यह वायुमंडल की आर्द्रता को बनाए रखने में आवश्यक होता है और ये आर्द्रता को बनाए रखता है तथा बादल बनाने में तथा प्रेसिपिटेशन या अवक्षेपण या वर्षा के लिए ये आवश्यक नमी भी प्रदान करता है। पृथ्वी पर जल का जो मुख्य स्रोत है वो है सागर या समुद्र। यहीं से जल वाष्प बनकर वर्षा एवं हिम के रूप में पृथ्वी पर अवक्षेपित होता है। वर्षा का जल प्रवाह जल के रूप में नदियों द्वारा आंशिक रूप से पुनः सागर में एवं वाष्पन द्वारा वायुमंडल में मिला दिया जाता है। A major part of water is locked up in Earth's crust, but it is only released in small quantities during volcanic eruptions. The large store in polar ice caps has little effect on hydrological cycle in short term due to negligible evaporation from them. The hydrological cycle is driven by the evaporative power of the solar radiation. The biota of ecosystem plays an accessory role in the cycle, and the presence and absence of the biota does not affect the movement of the cycle. However, it is an established fact that a significant amount of water is incorporated by the biota of the ecosystem in protoplasmic synthesis, and also there is a substantial return to the atmosphere by way of transpiration. जल का एक बहुत बड़ा अंश पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा भूतल के निचले स्तरों में भूमि जल के रूप में संचित रहता है। वर्षा एवं वाष्पन के परम एवं सापेक्ष आंकड़ों के आधार पर तत्स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्रों की संरचना एवं प्रकार्य का अच्छा विवरण जाना जा सकता है। ध्रुवों पर स्थित आइस कैप्स जलीय चक्र पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालते हैं क्योंकि इन पोलर आइस कैप्स के द्वारा
नगण्य मात्रा में इवेपोरेशन या वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। हालांकि ध्रुवों पर बर्फ की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है, बावजूद इसके वे जलीय चक्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा बहुत नगण्य मात्रा में वाष्पन की प्रक्रिया होती है। अतः ये जल के रूप में रूपांतरित बहुत कम मात्रा में हो पाते हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या जल चक्र मुख्यतया सौर ऊर्जा पर निर्भर करता है। इस चक्र के अंदर जीवों की उपस्थिति या अनुपस्थिति का भी प्रभाव होता है, किंतु बहुत ज्यादा प्रभाव इसमें नहीं होता है। जीव यहाँ पर सहायक की भूमिका जरूर अदा करते हैं, पर उनके बिना भी जल चक्र निरंतर जारी रहता है। यह एक स्थापित तथ्य है कि जल सभी सजीवों में प्रोटोप्लाज्म के रूप में संचित रहता है, किंतु इसके बदले में केवल मात्र पादपों के द्वारा बाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है, उसी के द्वारा यह जल पुनः एटमॉस्फेयर या वायुमंडल में निकाला जाता है। Characteristics of hydrological cycle. The global precipitation pattern is dependent upon the interaction of several forces. Primary of these forces is the interaction between atmospheric circulation and the topography. The distribution of the major ecosystem is dependent upon the interactions. The rate and the amount of precipitation being as critical as those of evaporation, the ratio of these two factors forms the crucial factor in determining the distribution of particular types of ecosystem. More water evaporates from the ocean than that returns to it via rainfall, and conversely, less water evaporates from the land and more returns to it via rainfall. This indicates that a part of the rainfall which supports land ecosystem comes from the water which is evaporated from the ocean. पृथ्वी पर वर्षा का प्रतिरूप या पैटर्न अनेक बलों की परस्पर क्रियाओं पर निर्भर करता है। इन बलों में प्रमुख रूप से प्रमुख बलों के रूप में वायुमंडलीय प्रसार तथा स्थलाकृति प्रमुख भूमिका निभाते हैं, तथा विभिन्न तत्स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्रों की संरचना एवं वितरण में महती भूमिका निभाते हैं। वर्षा एवं वाष्पन के परम एवं सापेक्ष आंकड़ों के आधार पर तत्स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्रों की संरचना एवं कार्य किए जाते हैं। The circulation pattern of atmosphere determines the pattern of precipitation distribution. The trade winds move from cooler latitudes towards the equator, carrying moisture and depositing the moisture in the equatorial region. This makes the equatorial region very wet, whereas the coastline to the north and south of the equator remains relatively dry. When moist air moves over a mountain range, it rises and cools to supersaturation. Precipitation occurs in such cases on the windward side of the range. As the moisture depleted air continues to move, it comes down, warms, and picks up the moisture by evaporation from ground and water surfaces. वायुमंडल की हवाओं के प्रवाह द्वारा वर्षा का पैटर्न तय किया जाता है। हवा का प्रवाह ठंडे अक्षांशों से भूमध्य रेखा की ओर होता है, जहां वे अपने साथ आर्द्रता व नमी को
भूमध्य रेखीय भाग में संग्रहित करते हैं, जिससे यह भाग अधिक नमी युक्त हो जाता है एवं भूमध्य से उत्तर एवं दक्षिणों के तटीय क्षेत्र कंपैरेटिवली सूखे रहते हैं। जब नमी युक्त वायु पर्वत श्रृंखलाओं की तरफ बढ़ती है और ऊपर की ओर उठती हैं, तब वे संतृप्त हो जाती हैं। ऐसी अवस्था में वायु के प्रवाह की दिशा में वर्षा होती है। जैसे जैसे वायु में नमी कम होती है, यह नीचे की ओर आकर गर्म हो जाती है तथा फिर से पृथ्वी पर उपस्थित जल सतह से वाष्पन द्वारा जल ग्रहण करती है। इस तरह से जल पृथ्वी के ऊपर उपस्थित समुद्र में जो जल है उससे वाष्पन द्वारा वायुमंडल में मिलता है। वायुमंडल में जल जब ये संतृप्त हो जाती है वायु, तब पुनः वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आकर के गिर जाता है। This figure shows the components of the global hydrological cycle and fluxes between them. The major reservoir is in the ocean and the major flows are evaporation from them and precipitation on them. However, there is a net flow of water vapor driven by winds from the ocean to land where it falls as rain, hail, or snow. The balance of the cycle is maintained by water flowing from the land as surface runoff or movement of groundwater into rivers and back to the oceans. A major part of the water is locked up in Earth's crust, but it is only released in small quantities during volcanic eruptions. Similarly, the large store in polar ice caps has little effect on the hydrological cycle in short term due to negligible evaporation from them. यह चित्र जल चक्र का चित्र है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जल का जो संचित संग्रह करने का स्थान है वो मुख्य रूप से समुद्र है, फिर कुछ मात्रा में पोलर आइस कैप्स के रूप में, कुछ मात्रा में जल स्वच्छ जल के रूप में या इनलैंड वाटर के रूप में उपस्थित होता है और कुछ मात्रा में जल केमिकली बाउंड रहता है जो कि चट्टानों में उपस्थित होता है। तो ये जल के संचित स्रोत हैं। इनमें से मुख्य रूप से वाष्पन की विधि के द्वारा जल वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और जैसे जैसे ये वायुमंडल में मिलता है, ये नमी युक्त वायु जब ऊपर की ओर उठती है और पहाड़ों से टकराती है तो वर्षा के रूप में पुनः समुद्र के ऊपर और पृथ्वी के ऊपर गिरती है। जितनी मात्रा में समुद्र से इवापोरेशन या वाष्पन के द्वारा जल लिया जाता है वायुमंडल के द्वारा, उतनी ही मात्रा में पुनः समुद्र को प्राप्त नहीं होता है। उससे अधिक मात्रा में ये जल पृथ्वी पर आकर के गिरता है, क्योंकि जो वायुमंडल की वायुओं का प्रवाह होता है वह ये निर्धारित करता है कि वर्षा किस दिशा में होगी। तो जहां वर्षा होती है वो वाटर रन ऑफ के रूप में जल पृथ्वी की सतह से होता हुआ नदियों में प्रवाहित होता हुआ और फिर पुनः समुद्र की ओर अग्रसर होता है। ध्रुवों पर उपस्थित जो रिजर्वॉयर के रूप में आइस कैप्स उपस्थित हैं, उनसे भी जल चक्र में बहुत अधिक सहयोग नहीं मिलता है, क्योंकि उस बर्फ का वाष्पन बहुत नहीं के समान होता है, वाष्पन लगभग नहीं होता है। सिमिलरली जो वाटर केमिकली बाउंड फॉर्म में रॉक्स में उपस्थित होता है, वो भी केवल जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है तभी वो बाहर निकलता है, अन्यथा वह जल भी जल चक्र के अंदर अपना बहुत ज्यादा सहयोग नहीं दे पाता है। तो मुख्य रूप से जल चक्र में समुद्र के द्वारा होने वाले वाष्पन के द्वारा वर्षा निश्चित होती है। कुछ मात्रा में पादपों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, वो भी इस जल चक्र में अपना सहयोग करती है। This is the diagrammatic representation of water cycle. In this picture, we can see that water is evaporated from ocean and it rises high and
By condensation, it forms clouds. These clouds, when supersaturated, then precipitation occurs and rain falls. Some amount of water is evaporated from inland water and some amount of water is coming to the environment by the process of transpiration. This water again converted into the clouds, and the precipitation takes place when the clouds become supersaturated with the moisture. So this is all about how the water enters into the atmosphere and then come back to the earth. इस चित्र के द्वारा जल चक्र को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। यहाँ यह स्पष्ट है कि समुद्री सतह से वाष्पन की प्रक्रिया के दौरान जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है और ऊपर की ओर उठता है। जैसे जैसे ये ऊपर उठता है, ये कंडेंसेशन के द्वारा बादलों में परिवर्तित हो जाता है और जब ये बादल पूरी तरह से जल से संतृप्त हो जाते हैं, तब ये वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर आता है। जितनी मात्रा में जल समुद्र से वाष्पन के द्वारा उठता है, उतनी ही मात्रा में वर्षा के द्वारा समुद्र को पुनः प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर कुछ मात्रा में वाष्पन की प्रक्रिया जो इनलैंड वाटर बॉडीज हैं उनके द्वारा भी होती है और यह जल भी वायुमंडल में जाकर के मिल जाता है। इसी तरह से जितने भी पादप पृथ्वी पर उपस्थित हैं उनके द्वारा भी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा भी जल वायुमंडल में मिलता है। फिर ये जल भी मिल करके बादलों का निर्माण करता है और ये बादल जब संतृप्त होते हैं तो पुनः वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाते हैं। फिर कुछ मात्रा में जल नदियों में प्रवाहित होता हुआ समुद्र में मिल जाता है। कुछ मात्रा में जल नीचे भूमि में अवशोषित हो जाता है, पर्कोलेशन हो जाता है इसका, और यह भूमि में उपस्थित जल पौधों के द्वारा अपटेक द्वारा पुनः ग्रहण कर लिया जाता है और इस तरह से जल चक्र पूरी तरह से नियंत्रित तरीके से कार्य करता है। So with this we complete the hydrological cycle. In the next video we will discuss some other biogeochemical cycles. Thank you.